Our today's guest of honor, Major Dr. Gulshan Sharma ji, Director ICSI, Dr. Engineer Sachidanand, Scientist, NIH Roorkee, Deans of the Schools, Head of the Departments, my colleagues, and my dear students. Good morning. A very warm welcome on this beautiful day. So today we all have assembled here for a festive building program on adaptation to climate change and greenhouse mitigation. So first we will start with the university anthem. So I request you all to rise for university anthem. Punjab केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय संस्कृतियों का मिलन बिंदु विज्ञान दृष्टि नारायण करके विद्या की इस फुलवारी से मेरे देश का मगर सारा ज्ञान विज्ञान का मधुर संगम जीवन मूल्यों का सहारा देश विदेश की समझ बढ़ाता भावी पीढ़ी का निर्माता विश्व बंधुत्व का भाव सिखाता तेरी शान तेरा मान पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान Thank you all. Now I request our Honorable Vice Chancellor, along with the Major General Dr. Gulshan Sharma ji, Engineer Sachidanand, Professor V.K. Garg, Dr. Patnaik, Dr. K.K. all to complete us for bundling of the class. Thank you, sir. So, respected all, we know climate change is a hot topic with myths and falsehoods circulating widely. Climate change is one of the greatest threats to human beings, and we are observing these either in the form of water scarcity in Bengaluru, few years back, floods in most of the North India, then water scarcity in Chennai. So climate change is one of the greatest threat. It is human-induced climate change leading to more extreme weather conditions,
Climate change is a global emergency that goes beyond national borders. It is an issue that requires international cooperation and coordination solution at all levels. There are steps every one of us has to take for a better and healthier planet. Act now, speak up, and show leaders that people are ready for change. There is a need to reduce global greenhouse emissions, advance nature-based solutions, accelerate the shift to renewable energy, and invest in resilient cities and communities. With these all words, today we will be focusing on climate change and greenhouse gas mitigation with our esteemed speakers. So, to start the meeting formally, I request our Dean and Head of the Department, Dr. Yogalakshmi KN, to have formal welcome address. She's available online. Please, ma'am. Thank you, sir. I hope I'm audible. Sir, am I audible? Yes. Okay. Good morning to one and all gathered here. Honorable Vice Chancellor, sir, keynote speakers, Major Dr. Gulshan Sharma, sir, Director General, Chamber for Service Industry, and Engineer Sachidanand Singh, Scientist B, National Institute of Hydrology, Dr. Suchitra Singh, Scientist, Punjab State Council for Science and Technology, Government of Punjab, Deans of Schools, Heads of Departments of Geography and Geology, Head in Charge Environmental Science and Technology, Heads of other departments of the university, faculty colleagues from Department of Environmental Science and Technology, Geography, Geology, and other departments of the university, and my dear students. It's my pleasure to welcome you all to this capacity building program on adaptation to climate change and greenhouse gas mitigation. The program is organized in collaboration with Punjab State Council for Science and Technology, Government of Punjab, supported by Department of Science and Technology, Government of India. Now, as Sir has already said, climate change is one of the most complex and pressing issue which we are facing in recent times. Now, it is a global problem and it is felt on the local scales too. And this will continue to remain for thousands of years. Now, despite increasing awareness about different issues on climate change, our emissions of greenhouse gases are increasing humongously every day. Now, responding to climate change, this involves two major approaches. One is by reducing the emissions and stabilizing the heat trapping gases in the atmosphere, which is nothing but the mitigation. And the second one is how to learn to adapt ourselves to the changing climate. Now, today's program is designed in a way to increase awareness among students about how to adapt to changing climate and also to enrich the students with different mitigation options. Now, before I end up my welcome address, it is my privilege to introduce our counter program coordinator, Dr. Suchitra Singh, Scientist C, Punjab State Climate Change Knowledge Center, Punjab State Council for Science and Technology, Chandigarh. She has done a PhD from Defense Institute of Physiology and Allied Sciences, New Delhi, India. She has also worked in esteemed institutes like Indian Council for Medical Research, Delhi, National Institute of uh, Research in Tuberculosis, Chennai, and National Institute of Epidemiology. She has a decade long experience in scientific and military research and has contributed to national and international public health programs. Now, with this, I once again welcome you all to the capacity building program. Thank you. Over to you, sir. Thank you, Dr. Yoga. So, today we have our speaker with us, Major Dr. Gulshan Sharma ji. So today's program I am introducing you with is that first we have in first session we have a lecture from Dr. Gulshan Sharma ji, followed by a presidential address by our Honorable Vice Chancellor sir, then facilitations, and then we'll move on to the high tea, followed by second session with Engineer Sachidanand, and then there will be vote of thanks. So uh, I'm just reading the introducing to you about the Major Dr. Gulshan Sharma. Though it is not possible to introduce him in just for 5 minutes, I have given, but in a very short, Dr.
Gulshan Sharma is PhD in Science Industry with focus on vocational education, skill tourism, and international business studies. He has done Harvard Business School Executive Development Program. His PhD doctorate in service industry with special emphasis in Asian tourism as a business activity and emerging trends in tourism service industry in Asia linked to the climate change and specifically on the water. Dr. Sharma is Director, Chamber of Science Industry. He has research work on climate change, cinematic tourism through University of Calgary, Canada. He has special work on life management skills and how to communicate to your greatness, emerging trends in sustainable development, sustainable tourism, with focus on environment protection, cultural preservation, water and wastewater management. So he has almost more than 40 years of experience. So, sir, we welcome you and request you for your keynote. Thanks. परम आदरणीय ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब इस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी के अंदर घुसते ही और इस कैंपस में आते ही जो एक अलग तरीके की खुशबू महसूस हुई right from the entrance we found it's altogether different and when I learned with a pleasure in 500 acres this particular university which has been established over here and on the top of that when I learned with a pleasure that it has got students from entire India with a lot of focus on northeast part of India. At the same time, we have got the faculty also, which is coming from different parts of the entire country when you talk about states, union territories, and whatsoever we can take care into consideration. I was extremely happy because बहुत सालों के बाद maybe after 10-12 years I have come this side. Before that, there are some stories, some experiences, because when you serve in the armed forces, it's altogether different kind of a scenario. Before I take on today's session, सबसे बड़ी deficiency आज की डेट में है the attention span. If the speaker is boring, if the speaker is not talking and focused and prepared, then the audience cannot be captivated for that long in duration whatsoever you allocate some time. So thereby, I would like to do justice, crisscross, participation, a lot of things will come. But before I come on to that, I would like to endorse and I would like to put it on records because a lot of people in India and in foreign country, today they are watching this particular program on YouTube because I circulated to the NRI's forum and I circulated to lots of experts in tourism, hospitality, airlines and a couple of other industries including the medical tourism and the health and wellness services. I wish to endorse and I wish to mention over here, you're very privileged, you're very, very privileged that you have got such a distinguished person at the helm of the affairs, the Vice Chancellor of this particular university. Let's clap for him and then I'll tell you what maintenance he enjoyed. As a Army Major, I had been going and giving a motivational talk, inspirational talk, whatsoever you talk about on etiquette, manners, gesture, body language, communication skills, how to influence, how to appear for interview, how to get a job, how to grab a job, how to seek a job, and how to deserve a job. All those kind of things. और वो एक beautiful सड़क के ऊपर तो थोड़ी पहाड़ी पर चढ़कर सागर के अंदर डॉक्टर हरी सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी and Vice Chancellor Saab spent a considerable time of his life right over there. So it's a privilege when you come to know the gentleman has spent time over there in that arena where you have also been there. And in a very polite way, when I was sitting and having the warmth, a cup of tea with लाइन्स में सागर में आकर एक बंगाली की दुकान होती थी जहां पर रसगुल्ला और रसमलाई मिला करती थी and we had a hearty laugh with each other
because these memories, the life is a beautiful journey how you make it, each and every moment which you enjoy. And I've yet to come across anybody who is a North Indian and who has spent that time. I always used to consider शायद मैं ही कैसा हूँ कि पैदा तो नॉर्थ इंडिया में हुआ हूँ, लेकिन मेरी रूह, मेरी सोल, मेरी बॉडी, मेरी आत्मा नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती है, because I am the one who has traveled. हो सकता है मेरी बहुत सारी हाइट भी कम हो गई है पैदल चल चल के नॉर्थ ईस्ट में. I believe that way. But when I learned and when I talked to a couple of professors yesterday in Mizoram, Aizawl, Lingpui, Tourist Lodge, and Mizoram University, and when I learned with the pleasure, 32 years of his long life he has given to Mizoram. He deserves a big thunder of clap from all of you. Come on, ladies and gentlemen, there are very less people who have traveled, who have stayed, who have contributed. Humanity को सभी contribute करते हैं, but Northeast is one, and I always believe in that. We kept them away quite long from us. It is basically the present government system which brought the Northeast in a fold. It used to be Look-East policy, Look-East policy. It became Act-East policy. And thereafter, right from Tripura, come to Manipur, come to Assam, come to Meghalaya, come to Arunachal, come to Sikkim, go to Nagaland, go to Mizoram, wherever, 8 beautiful states. Last 40 years, I know each and every stone of that area because I walked as an army officer on ground. What a beautiful place. अगर स्वर्ग है, अगर environment है, अगर environment protection है, अगर हम climate की बात करते हैं, तो डॉक्टर सुनील मित्तल जी बच्चों को लेकर नॉर्थ ईस्ट में जाइए, बच्चों को नॉर्थ ईस्ट लेकर चलिए. Let them see Northeast. What is greenery? What is flora and fauna? What exactly is vegetation? What exactly is the wildlife tourism, nature tourism, green tourism, eco-tourism, soft adventure tourism? And when we talk about बच्चे को soft skills सिखानी है job देने के लिए. Anytime you go to any company, they say we are focusing on soft skills. जब soft skills की बातचीत करते हैं, God has given soft skill to Northeast children in a natural way. They are courteous, they have wonderful manners, they are very hygienic, they take care of things. I learned so much from all of them. So let me just come back. पटनायक साहब को ये ना लगे कि Northeast की बात कर रहे हैं, कटक की तो बात हुई नहीं, उड़ीसा तो मुझे लेके गए नहीं. So that should not happen. Katak has got beautiful saris. I brought after marriage 5 saris for my wife for the first time, and she was very happy. Let me tell you. So let us talk about, when we are talking about climate change, I want to change the climate and the atmosphere and the environment. Every day you have got a lot of speakers coming over here speaking and all that. Let me just share with you. Everybody is going to talk with everybody. Whatever I say, you're going to repeat with me. Okay? Good morning. Good morning. Good morning. I'm very happy. Today is the happiest day of my life. ना भी हो कहने में क्या मतलब है? क्या हर्ज है? अच्छी आवाज तो निकलेगी. Okay. I'm enjoying this seminar. I'm privileged that the Honorable Vice Chancellor of our university and the Water Conservation and Environment Conservation Department, along with the Geography Department, is giving this beautiful morning. I'm happy. Today is my day. This is my life. I take a pledge. I promise I will make my university #1 university in Asian continent. That day is coming. We will move in that direction. I'm happy. Shake hands with your neighbors and say, I'm happy. Come on. Shake hands.
वाइस चांसलर साहब के साथ करता हूं। Ladies and gentlemen, life is a beautiful journey. It's a wonderful journey. You got to understand. Life is full of stories. Life is full of stories. जो इधर पौधों को सुबह पानी दिया गया और जो हम सब ने मिलके एक प्रयास किया, that was a new experience for me altogether. Because कहीं भी आप जाते हैं, हर तरह के norms हैं, कहीं दिया जलता है, कहीं किसी और तरीके से inauguration होता है. It was altogether different. And life is full of stories. And so is the story of my life. I come from a very poor family. I belong to Punjab, but my father was very poor, and we could not afford 2 times meals. I used to take tuitions, and my both the brothers, they used to carry on with their education just because of that work. I used to work extra. I didn't have the money to purchase the books to get commissioned to the Indian Army, but like Dosta, he's the one who retired from the crime branch as the assistant commissioner of police. He's the one who solved the case of Nirbhaya case, which was he's Ramesh Chandra Nandan. He was from a good family. His books to prepare myself for Indian Army written examination night time at 11 o'clock. His father was very strict. He told, you need not to give his books to anybody. You got to study, prepare, and you got to get through. रात को 11 बजे लेकर आता था, सुबह 4 बजे साइकिल पर वापस लेकर आता था. Before his father used to go for morning walk at 5 o'clock. And God was with me. I cleared my written examination and thereafter SSB. SSB के अंदर सबसे नीचे जब लास्ट में लिस्ट बन रही थी, so the president of the board इलाहाबाद से जो प्रयागराज है अभी, वहां के SSB के बोर्ड के ब्रिगेडियर ने कहा, गुलशन शर्मा, तुम्हारे अंदर एनर्जी तो है, पंजाबियों वाली ऊर्जा तो है, लेकिन यार तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो, ये बड़ी प्रॉब्लम है, मैं तुमको कैसे सेलेक्ट. मैंने कहा सर एक मौका तो दीजिए, मैं अंग्रेजी भी सीख लूंगा, कुछ भी सीखना मुश्किल नहीं है, अगर मेरी शिद्दत है और मेरे पे भरोसा कीजिए, आप मुझे मेरिट में सबसे नीचे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, but I don't want to be a failure, I want to get selected. कहता तुम्हारे को मिलने के बाद, तुम्हारी हाइट तो छोटी सी है, लेकिन तुम्हारे अंदर से कुछ आवाज आ रही है कि मेरे को तुमको लेना चाहिए. मैंने कहा सर ले लो ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ले लो, एक बार मौका तो दो मुझे. And listen to me, I still recall that day. I joined 1973 Indian Army. I'm 70 years old today, but my energy is that of 25-year-old boy. वो इसलिए नहीं कि मैं असली पंजाबी हूँ, वो इसलिए कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं टी टोटलर हूँ. फौज में रहने के बावजूद भी मैंने आज तक बियर को सूंघा भी नहीं है, पीने की तो बहुत दूर की बात है. और सुबह 3-3:30 बजे उठता हूँ. वो बात और है कि मित्तल साहब 5 बजे गाड़ी में बिठा के मुझे कहते हैं बठिंडा पहुंचिए. दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैंने अपना एक दोस्त बनाया इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर. ही वाज फ्रॉम गोवा. हिज नेम इज क्लिफ्टन आइवन मार्केट्स. एंड द बेस्ट पार्ट वाज, मैं अंग्रेजी नहीं जानता था, वो हिंदी नहीं जानता था. उसको मैंने दोस्त बनाया. तो आज इस क्लाइमेट, पहला क्लाइमेट चेंज कीजिए, make friends from whom you can learn something. Make friends from whom you can acquire, you can get something. और अगर आप ऐसे ग्रुप में हैं जिसमें लोग आपसे सीख रहे हैं और आप उनसे कुछ नहीं सीख रहे, तो आई एम सॉरी, वो ग्रुप छोड़ दीजिए, नया ग्रुप ज्वाइन कीजिए. It's a fact of life. You got to understand. You got to learn from others. Life is beautiful learning. And देखिए, 4 साल 3 साल 1 और 1 साल 1, 4 साल की टोटल डिग्री के अंदर, 4 इयर्स के अंदर, आई जस्ट टू शेयर. मैं कभी यहाँ से ऐसे बोलता नहीं, अगर दूसरा माइक मिले तो बहुत अच्छा है, बट एनीवे वी विल मैनेज विद दिस. मैं कभी भी पोडियम के पीछे नहीं खड़ा होता हूँ, ऑडियंस के बीच में जाता हूँ और बात करता हूँ. तो 4 साल तक मैंने उससे अंग्रेजी सीखी और उसने मुझसे हिंदी सीखी.
And 4 years के बाद, ladies and gentlemen, when I was passing out from Indian Military Academy, I got the best prize in the declamation in English language, best orator for English. कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। एक बार सोच लीजिए, जब आप सोच लेंगे ना कि हमने कुछ करना है, तो ये जो इंसान है ना, और ये जो छोटा सा ये यहाँ पर टिकाया हुआ है, आप इस दुनिया में, इस संसार में क्या योगदान दे सकते हैं, आपको अपनी पावर का पता ही नहीं, आपको अपनी क्षमता का पता ही नहीं है। आपको कोई ना कोई जगाने वाला ऐसा चाहिए जो आपकी ये बताए कि आपकी क्षमता क्या है। एंड देयर आफ्टर join the army, captain, patrolling. कोई anybody from Assam over here? Anybody from Assam? Good. Oh, second hand. Anybody? एक और hand here. 3, 4. Very good. I will take you to Assam. दुलियाजान, उसके बाद तिनसुकिया, तिनसुकिया के बाद डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ के बाद मोरान, मोरान के बाद शिवसागर, शिवसागर के बाद जोरहाट, जोरहाट के बाद काजीरंगा, काजीरंगा से नौगांव, नौगांव से दिसपुर, दिसपुर से गुवाहाटी. I used to walk on patrolling. Anybody from Arunachal Pradesh? Anybody from Arunachal Pradesh? Okay, तो मैं जो भी कहूँगा आप मान लोगे क्योंकि कोई है ही नहीं अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। Arunachal Pradesh I used to walk. Nagaland. Anybody from Nagaland? Okay. Yes, great. I got 2 friends. Very nice. It is not only Dimapur alone. Go a little bit further and you go to Kohima, go to Mokokchung, go further. And particularly Arunachal का जो border है, वहाँ पर लॉन्ग के पास 2 जगह हैं, वाका एंड पंचुआ, एंड खौसा में जाते हैं, देवाली, बहुत सारी जगह हैं। If you travel to north east, जितना आप ट्रैवल करते जाएंगे, आपको समझता आएगा, प्रभु ये तेरी दुनिया कैसी है, ये तूने सब क्या बचाया हुआ है। जो मित्तल साहब यहाँ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, गॉड ने उसको अपनी लैब में लेकर, आज अगर आप देखें स्वामी रामदेव जी के साथ और आचार्य बालकृष्ण जी के साथ मैंने 3 चक्कर लगाए, और तेजपुर के पास उन्होंने अपना प्लांट लगाया, पतंजलि प्रोडक्शन। 10,000 students have got employment in Assam just because of Patanjali production team established over there, and they have done wonderful. Okay, let me come on further. किसी अंगुश में, किसी जगह, क्योंकि फौज में आप जगह की बातचीत नहीं करते हैं, पेट्रोलिंग में we were 11 of us, 9 died and 2 survived. 8 महीने हॉस्पिटल, 8 months हॉस्पिटल, एक ही दीवार, एक ही बिंदु और एक ही सवाल खुदा से, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तो उसने मुझसे पूछा, तुम्हारे साथ ही तो किसी और को करूं क्या? बार बार खुदा यही कहता था, तुम नहीं तो कोई और किसके साथ करूं मैं? You deserve, you got it. Anyway, जो 8 महीने मुझे दवाई देने के लिए और इंजेक्शन के लिए, मेडिसिन के लिए जो मुझे लुक आफ्टर करते थे डॉक्टर, 8 महीने के बाद जब मैं ठीक हो गया, तो मैंने कहा इसी नारी की वजह से मेरा जीवन बना है, मैंने उसी से शादी कर। Second climate change, एक नारी, एक औरत, एक वुमन आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपको एक अच्छा इंसान बना सकती है। If I'm a vegetarian and a teetotaler, this is because of my wife. She's a Radha Swami from Satsang, and she told सब कुछ चलेगा, ना घर में दारू आएगी, ना घर में नॉन वेज होगा, किसको ले जाना है तो क्लब में ले जाइए, वहाँ एंटरटेन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और पटनायक जी आप बिल्कुल नाराज मत होइए, शादी के बाद अपनी वाइफ की पहली 5 साड़ियां कटक से आपके एरिया से ही गई। Ladies and gentlemen, the thing is, life is stories, life is beautiful. भारत में नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रेजेंटली हमको मौका दिया है, मैं आज आपको बता रहा हूं, अपने होशो हवास में यूनिफॉर्म पहनने के बाद जिंदगी के अंदर मैंने कभी नहीं सोचा था कि 10 साल के अंदर इतना चेंज आ जाएगा। आज सड़क पे भी ट्रैवल करो तो आपको खुशी होती है, कहीं किसी और जगह ट्रैवल, ये वंदे भारत और ये सब चीजें, एयरक्राफ्ट, मेरा बहुत शौक है। और जिन कंट्रीज ने
सभी बच्चों को और टीचर्स को भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, किसी भी कंट्री की कोई स्कॉलरशिप मिलती है, चाहे 1 महीने की मिलिए, लेकिन छोड़िएगा नहीं, आप उसको ले लीजिए, कोई पता नहीं कौन सी चीज का काम आता है। और उसके बाद जब हमारी मेडिकल कैटेगरी डाउन हो गई तो हमने अपनी मास्टर्स और पीएचडी किया और सर्विस इंडस्ट्री में किया, जबकि सर्विस इंडस्ट्री को कोई नहीं जानता था। मुझे शेख जो यूएई के दुबई के हैं, वो इतने पसंद है, कुछ कहने की आती, वो कहते हैं ऐसी इमारत बनाओ जैसी पहले कभी बनी ना हो, या वैसी इमारत कोई बना ना सके। सब लोग उस समय एग्रीकल्चर में आ रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे थे, ये फैक्ट्री वो फैक्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री को कोई नहीं जानता था। और मैंने अपने प्रोफेसर डॉक्टर रॉन बैम्फर्ड, तो पंजाबी उसकी हमारी अंग्रेजी, तो बैम्फर्ड की जगह उसको बम्फोर्ड बोलता था, तो आई वेंट टू हिम एंड आई टोल्ड हिम, इज देयर एनी सब्जेक्ट वेयर आई हैव नॉट टू स्टडी, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जहां मुझे पढ़ना ना पड़े? ही लुक्ड एट मी एंड ही स्माइल्ड, ही सेड कम टुमारो मॉर्निंग आई विल टेल यू। उस रात में सो नहीं सका, यार ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें पढ़ना नहीं पड़ता, ये तो बड़ी अच्छी बात है, एक हर सब्जेक्ट में पढ़ाई करनी पड़ती है। And next morning, when I went to him, he called me 10 o'clock. I went at 9:30. He saw me while entering his room. Hey, Peter, you're already sitting here. I said, yes, I'm here. He said, come inside. I went. मैंने कहा मुझे सब्जेक्ट बताइए कौन सा है जिसमें मास्टर्स कर सकता हूँ और पढ़ाई न करनी पड़े। नाम भी इतना स्वादिष्ट था, ऐसे लगता था कि इतनी बढ़िया चॉकलेट है, क्लियरिटी की पूछिए नहीं। कोर्स का नाम था पोस्ट ग्रेजुएशन इन हॉलिडे and leisure tourism. Post graduation masters in holiday and leisure tourism. I said यार holiday भी है, leisure भी है, tourism भी है, पर्यटन भी है। भारत से अच्छा देश वर्ल्ड में कौन सा है जिसके पर्यटन की बात करें? एक ही वक्त में यहाँ गर्मी भी है, सर्दी भी है, पतझड़ भी है, बर्फ भी गिर रही है, 40 डिग्री टेम्परेचर भी है, कल्चर भी है, और 20 किलोमीटर जाओ तो नया त्योहार है, नया फेस्टिवल है, नया फूड है, नया सीन है, नया डांस है, नया म्यूजिक है, नई संस्कृति है, नई भाषा है। इससे अच्छा कहां मिलेगा? और मैं आपको, लोग कहते हैं ना, पहले होता था फिल्मों में, अब तो बंद हो गया कि जो कुछ कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, गीता पे हाथ रखो। आज तो सीता पे भी हाथ रख दो तो आदमी सच नहीं बोलता, गीता तो छोड़ दो। और वो सारी चीज को लेकर मैं जो आपको बताऊंगा सच कहूंगा और सच के अलावा कुछ नहीं। मैंने अपनी मास्टर्स हॉलिडे एंड लेजर टूरिज्म की किताबों को नॉवल की तरह पढ़ा। मैंने उन किताबों में से एग्जाम में कुछ नहीं लिखा। एक ही बार पढ़ने के बाद जो मेरे मन में आया कि टूरिज्म कैसा होना चाहिए, पर्यटन कैसा होना चाहिए, जैसे आज भी मेरी पीड़ा है, मैं बहुत जोर लगा रहा हूं कि एनसीईआरटी अपनी किताबों में डोमेस्टिक टूरिज्म को डाल दे। डोमेस्टिक टूरिज्म एक अलग से सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। मेरी संस्कृति मेरी है, मेरा पहनावा मेरा है, मेरा कल्चर मेरा है, मेरी वैल्यूज मेरी है, मेरा इंडियन नॉलेज सिस्टम मेरा है। व्हाई शुड आई स्टडी दैट? वो मेरे शरीर का एक हिस्सा है, मेरी आत्मा का एक हिस्सा है। दैट इज द वे वी हैव टू लुक एट इट। एंड आई डू नॉट नो, गर्ग साहब से आज मैं पहली बार मिला हूं, पहले नहीं मिला, सौभाग्य है। गर्ग साहब जैसा कोई प्रोफेसर रहा होगा, उसने मैडम शर्मा के मार्क्स मेरी आंसर बुक में लगा दिए। ज्योग्राफी वालों के मार्क्स एनवायरमेंट में लगा दिए, एंड बाय मिस्टेक आई गॉट सेकंड पोजीशन इन द यूनिवर्सिटी व्हाइल राइटिंग माय ओन आंसर्स। और उसके बाद गर्ग साहब ने कहा कि अब हम आपको पीएचडी की स्कॉलरशिप देते हैं, कोई पैसा खर्च करना, व्हाट टू डू पीएचडी। हम तो एक मास्टर करते ही पहले नहीं करना चाहते कि आप पीएचडी भी करवा रहे हो। चलो, हमारे को गाइड बन गए वित्तल साहब। उसके बाद हमने पीएचडी किया। पीएचडी भी इंटरेस्टिंग रहा, और वो सब कुछ वो जानने के लिए था और सब जगह घूमने के लिए था। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट आई वांट टू टेल यू, लाइफ में क्या आता है, कैसे आता है, कब आता है। आप करना कुछ चाहते हैं, होता कुछ है। आप बनना कुछ चाहते हैं, बन कुछ और जाते हैं। I wanted to retire as a lieutenant general from Indian Army, and I might have not traveled the whole world, which I could see because of diversity. मेडिकल कैटेगरी डाउन होने की वजह से मास्टर्स और पीएचडी करने के बाद
मैंने यूपीएससी क्लियर किया एंड आई एम द फर्स्ट इंडियन आर्मी ऑफिसर आफ्टर 1947। भारत के आजाद भारत में जो डेपुटेशन पर एज ए डायरेक्टर टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चला गया और वहां जाने के बाद मैंने मिनिस्ट्री ऑफ तारीफ बढ़ती है और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में जाते ही पहले दिन अपने मन में ये सोचा कुछ ऐसा करना है जो किसी ने पहले ना किया हो। 20 एकड़ जमीन फ्री में शिवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में मध्य प्रदेश में ली। माधवराज सिंधिया मेरे टूरिज्म मंत्री थे, उन्होंने कहा कि मेरे साथ लग जाओ और हमने वहां पहला कैंपस बनाया। भारत का पहला इंस्टीट्यूट टूरिज्म का बनाया IITTM। उसके बाद मैं कटक से भुवनेश्वर गया, फिर भुवनेश्वर में मैंने IITTM बनाया, फिर मैंने लखनऊ में IITTM बनाया, दिल्ली के अंदर IITTM बनाया और उसके बाद चंद्रशेखर जी भारत के प्रधानमंत्री बने, उनके साथ देवीलाल जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने और तीसरा जो मेरे बॉस थे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में मिश्रा 1956 बैच के IAS ऑफिसर, he became principal secretary to Prime Minister of India। उन्होंने बुलाया मुझे कि गुलशन अब तुम ऐसा करो कुछ नई चीज लेके आओ। क्या लेके आए? तो मैंने कहा सर इंस्टीट्यूट बन गया है, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, बैचलर, मास्टर्स ये तो होता रहता है, हम MBA टूरिज्म शुरू करते हैं। जितनी फॉरेन यूनिवर्सिटीज के अंदर मैं पढ़ाने जाता था, ट्रैवल करता था, जहां जाता था फॉर द UGC, I developed India's first MBA tourism curriculum and program in 1990. That's the first time और UGC ने उसको इंट्रोड्यूस किया। और आप हैरान हो जाएंगे, कोई भी बच्चा अगर मुझे पूरे ऑडियंस के अंदर से आके बता सके कि इंडिया में MBA टूरिज्म सबसे पहले कौन सी यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ था, तो यू विल गेट 1000 रुपीज कैश प्राइज। देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अभी तो क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं। Anybody who can tell me where did the MBA tourism for the first time India started? It is called MBA tourism also, MTM tourism also, MTA tourism also। कहां शुरू हुआ? You'll be surprised to know it was Lieutenant General Balaram was the Vice Chancellor, Devilal ji was the Deputy Prime Minister। मुझे बुलाया गया और मुझे कहा कि कुरुक्षेत्र जाओ, कुरुक्षेत्र पहुंचो और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर लॉर्ड कृष्णा ने जहां अपना गीता का उपदेश दिया था उसी के साथ में MBA टूरिज्म शुरू कर दिया। एंड कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इज इंडिया's first university and second is madam your state, that is हिमाचल यूनिवर्सिटी। 15 अगस्त 1990 छुट्टी का दिन, पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। वाइस चांसलर साहब फिजिक्स के बैकग्राउंड से थे, प्रोफेसर मल्होत्रा, उसने कहा कि मेजर भी सिद्ध फिरा है, छुट्टी वाले दिन आया है, आज करना चाह रहा है। मैंने कहा सर आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। उनके घर में छोटा पोर्टेबल टाइपराइटर था, उस पर बैठे मैंने चिट्ठी टाइप की, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से 7 लाख रुपए का चेक लगाया और मैंने बोला सर ये आप MBA टूरिज्म हिमाचल यूनिवर्सिटी में शुरू कर दीजिए। एंड thereafter जोधपुर यूनिवर्सिटी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, इंदौर, उसके बाद शिवाजी यूनिवर्सिटी, उसके बाद बहुत सारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। And when I talk about all this, today 247 universities are having MBA tourism। क्लाइमेट को आप चेंज करेंगे, कोई और चेंज नहीं करेगा। और जो क्लाइमेट चेंज की बातचीत करते हैं सबसे ज्यादा प्रदूषण वही फैलाते हैं, सबसे ज्यादा गाड़ियां भी वही यूज करते हैं, सबसे ज्यादा एयर कंडीशन भी वही यूज करते हैं, सबसे ज्यादा रिसोर्सेज एनर्जी की, कोल की, ऑयल की वही यूज करते हैं। बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। I cannot tell when I go to Glasgow's conference, I would say, well, we are preparing, we are coming, we are doing। मुझे पोस्ट करना पड़ेगा, मैं तो कैसे करूं? तुम तो गलत फैला रहे हो और तुम हमको बोल रहे हो कि क्लाइमेट चेंज करो, कैसे चेंज कर रहे हो? So, ladies and gentlemen, when we are talking about climate change, I'll focus on 3 areas। मैं आज ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब को बहुत सारी चीजों के लिए आग्रह करने वाला हूँ, रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, विनम्र भाव से बहुत सारी बातों के लिए आज कहने वाला हूँ। कितनी चीजों में वो एग्री होते हैं वो हम देखेंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से
कुछ दिमाग में सोच के आया हूँ, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूँ मैं को एक ही बात कहता हूँ कि कुछ ऐसा करें कि जैसा पहले कभी ना हुआ हो, कुछ ऐसा करें कि जो समाज में बदलाव लाए. There should be a change in the society and there should be a value addition in the society. That is the way we should work out. तो अब आप देखिए, कभी भी हम आते हैं लेक्चर के लिए, कुछ प्रोग्राम के लिए, तो जब इतने सारे पेज देखते हैं तो ऑडियंस कहती है अरे यार ये तो बहुत बोर करेगा, 11 पेज है, कहाँ से पढ़ता रहेगा. मैं कुछ नहीं कहने वाला, मैं सिर्फ रिकमेंडेशंस की बातचीत करूंगा. जो मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है, विनम्र भाव से निवेदन है, वाइस चांसलर साहब जिन जिन चीजों को एक्सेप्ट करना चाहेंगे, मैं आज आप सब लोगों के साथ मिलकर एक ही बात सोचना चाहूंगा, क्या हम इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब को एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बना सकते हैं. और देखिए, वो अकेला कोई नहीं कर सकता, मैं अकेला ही चला गया जानबे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता है, लोग जुड़ते गए उसके अंदर और उसके साथ साथ वो कारवां पूरा बनता गया. यू गॉट टू अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ यू. ओके, एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग. कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई ज्यादा गोरा है, कोई कम गोरा है, कोई चश्मे के साथ है, कोई चश्मे के बिना है, किसी के ज्यादा बाल है, किसी के मेरी तरह बाल है ही नहीं. सब अलग अलग हैं, हम सब अलग अलग हैं, हमारी सोच भी अलग अलग है, लेकिन God has given only one thing common to all of us. What is that? God has given all of us only one thing common. What is that? आप अंग्रेजी ले रहे हैं या हाथ ऊपर कर रहे हैं, मुझे पता नहीं. अच्छा, ठीक. हाँ जी, उन्होंने साइड में थोड़ा सा दिया. हाँ जी, anybody from the audience, थोड़ा सोचिए. हाँ जी, क्या बेटा? माइंड. आपका माइंड बहुत शार्प है, तेज है. सुबह 5 बजे आपको आइडिया शो जाते हैं, मैं 7 बजे तक खड़का रहा हूं, कोई आइडिया नहीं आता है. नो, माइंड इज नॉट सेम. हैप्पी. Environment is not same all the places everywhere. कोई किसी एनवायरनमेंट में बड़ा होता है, कोई किसी वातावरण में बड़ा होता है. इमोशन, तुम बहुत इमोशनल हो, है ना, भावुक हो, हमारी गर्लफ्रेंड भी अच्छी है, मैं ऐसा नहीं कर पाया, मैं क्या करूं, मैं भावुक नहीं, कठोर हूं, यूनिफॉर्म ने वैसा बना दिया, ट्रेनिंग ने वैसा बना दिया. हाँ जी, और कोई? हाँ, किसने बोला है? कौन बोला है? हाँ, डॉक्टर मित्तल साहब से बात 1,000 रुपए ले लेना. क्या नाम है आपका? हाँ, Faiz. Okay, just clap for him. Clap for him. देखो, मित्तल साहब ने आपकी फोटो भी देखी, क्योंकि आपको बाद में 1,000 रुपए देना है. God bless you. आपने कैसे सोचा टाइम के बारे में? Great. I'm proud of you. Ladies and gentlemen, time is only one. इंटरनेट सबको मिला, वाईफाई सबको मिला, नींद सबको मिली, 24 घंटे सबको मिले. कोई आदमी ये कह सकता है भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया, I didn't get 24 hours complete. Everybody gets 24 hours. How do you make best use of those 24 hours is your growth, your personal growth. सब कुछ छिन सकता है, लेकिन आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपकी कॉम्पिटेंसीज, आपका टैलेंट और आपके अंदर से जो चल रहा है वो कोई नहीं छीन सकता. Punjab is such a beautiful state. You are privileged that you are here. कुछ चीजों का शायद आपको आभास ही नहीं होगा कि आप यहाँ रहकर क्या कर सकते हैं. He is no more now the Chief Minister of Punjab. उनको पता लगा कि मेजर डॉक्टर गुलशन शर्मा बच्चों के स्किल पे काम करते हैं. मैं कुछ सेक्रेटरी साहिबान को पहले पंजाब में कह चुका था, मुझे कोई भी 2 बच्चे दे दीजिए अपनी पसंद के, जो ये कहें कि हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं बन सकते, इनका कुछ नहीं हो सकता, उनके माँ बाप भी नकार दें उनको, वो 2 बच्चे मुझे दे दो. 6 महीने के बाद आप पहचान नहीं पाएंगे ये वही बच्चे हैं कि कोई और हैं. वो कम से कम 25 से 30,000 रुपए कमाना शुरू हो जाएंगे. That is the skill I want to give them. It doesn't make a difference what marks you get. It doesn't make a difference what score you get. It makes a difference what value addition you do to the life of planet. And that is climate change.
आप क्या क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। मेरे को अपने साथ हेलीकॉप्टर में बिठा के यहाँ लंबी लेके आए थे, मुझे अभी भी याद है, और हमको रात को यहाँ रखा। अगले दिन उन्होंने मुझे 150 बच्चे दिए, जिन बच्चों ने कभी भी कोई शहर नहीं देखा था, रेलवे स्टेशन नहीं देखा था, एयरपोर्ट नहीं देखा था, अपने गांव से बाहर नहीं गए थे, अपने माता पिता के साथ ही जैसा जीवन गुजर रहे थे, उनको 6 महीने हम चंडीगढ़ लेके गए। और 6 महीने के बाद हम टोटल माउंट व्यू सेक्टर 10 में कार्यक्रम किया। सीएम साहब को एज चीफ गेस्ट बुलाया, सेक्रेटरी साहब ने सारा प्रबंध किया, और वो 150 बच्चों में जो परिवर्तन सीएम साहब ने देखा, उसका अवार्ड मैं अपने जीवन भर नहीं भूल सकता, बिकॉज ही वाज द पर्सन। वो सुबह 6 बजे नहा धो के बैठ जाया करते थे सबसे बात करने के लिए, कि मुझे लोगों से मिलना है, वार्तालाप करना है। ओके, when we are talking about climate change, हर आदमी अपने सब्जेक्ट की बातचीत करता है, जिसको जिस चीज की पकड़ होती है उसी की बातचीत करता है। मैं 3 एरियाज पर फोकस करूंगा, एक टूरिज्म पर, एक होटल इंडस्ट्री पर, और एक हेल्थ इंडस्ट्री के ऊपर। इन 3 पर हम फोकस करेंगे। जब मैं टूरिज्म की बातचीत करूंगा तो भारत में हर तरह का पर्यटन है, डोमेस्टिक टूरिज्म भी है, इंटरनेशनल टूरिज्म भी है, दोनों है, दोनों को हम लेकर चलते हैं। जब हम डोमेस्टिक टूरिज्म की बातचीत करेंगे तो विद इन कंट्री जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आपका व्यवहार कैसा रहता है। घर के अंदर आप गंद नहीं डालना चाहते, लेकिन जो कागज आपने वहां से उठाया था आप सड़क पे डालते हैं, कहते मेरा ही तो देश है, मेरा देश महान, जहां दिल करते वही डाल देते हैं। क्या आपको पता है? कल मैंने एक एड देखा, किसी ने क्रिएटिव बनाया, इतना बढ़िया एड है, उसको अवार्ड मिलना चाहिए, बिकॉज लास्ट नाइट ओनली आई सॉ दैट एड। जिसने बनाया उसने एक एड बनाया, एक कूड़ादान पड़ा है और उस कूड़ेदान के साइड में काफी कचरा पड़ा है, लोग वाटर बॉटल, कुछ कागज वगैरह टुकड़े, ये सब चीजें डाल रहे हैं, और ये आदमी वहां से निकल रहा है। ये जब उस कूड़ेदान को देखता है और उन चीजों को बाहर गिरे हुए देखता है, तो पहले एक बॉटल उठाता है, उस कूड़ेदान में डालता है, तो एक आवाज आती है और पीछे एक हरा ग्रीन पेड़ उड़ जाता है। वो दूसरी बॉटल उठाता है, डालता है, तो दूसरा पेड़ और पीछे वैसे ही निकल आता है। पहाड़ी के ऊपर जो बैरन लैंड थी, बिल्कुल जैसलमेर, बाड़मेर के इलाके की तरह, रेगिस्तान की तरह। और उसके बाद वो बाकी बचे हुए जितने भी कागज हो गए सबको इकट्ठा उठाकर उस डस्टबिन में डालता है, पीछे पेड़ ही पेड़ हो जाते हैं और एनवायरनमेंट एकदम। इट्स अ ब्यूटीफुल क्रिएटिव एड व्हिच आई सॉ यस्टरडे, माय वाइफ सेंट मी, एंड आई गेट टू फाइंड आउट हु हैज क्रिएटेड। जिसको भी मिले आप वर्कआउट कीजिए। ओके, कलेक्टिव एफर्ट है, यूनिवर्सिटी को प्रमोट करना है, यूनिवर्सिटी को आगे लेके चलना है, तो आप एक काम कीजिए, जितने लोग आज ऑडियंस में बैठे हैं, हर एक की सोच अलग है, हर एक की विचार अलग है, हर एक की इंक्लिनेशन अलग है, हर एक का पॉइंट ऑफ पॉइंट अलग है। कोई यहाँ बैठ के इस समय किसी और चीज के बारे में सोच रहा होगा और कोई सारी चीजों को सोचकर छोड़कर इसी के बारे में सोच रहा होगा कि आज इस लेसन से, इस क्लाइमेट चेंज से क्या लेकर चले। लेट अस मेक ए व्हाट्सएप ग्रुप, लेट अस मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में क्लाइमेट चेंज के प्रति वाटर मैनेजमेंट को मद्देनजर रखते हुए आप कोई भी क्रिएटिव, कोई भी यूट्यूब, कोई भी इंस्टाग्राम, कोई भी फेसबुक, कोई भी ट्विटर, कोई भी लिंक्डइन, कुछ भी उसमें डालें। जो महीने का बेस्ट कंट्रीब्यूशन होगा उस स्टूडेंट को हर महीने हम एक नए स्टूडेंट को कुछ अपने चेंबर की तरफ से कैश अवार्ड देंगे। लेट अस मेक ए व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि आज सुबह कुछ शुरू होना चाहिए, कुछ नया शुरू होना चाहिए। दैट इज द वे वी हैव टू लुक एट इट एंड वी हैव टू सी। ओके, मैं 5-6 चीजों की बातचीत आपसे करना चाहूंगा, और जो निवेदन डीसी साहब से मैं अपने रिकमेंडेशन में, पंजाब की 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 11 नवंबर 2002 को हम माननीय प्रधानमंत्री जी को मिले थे, वाजपेयी जी को, और उनसे बातचीत करके हम अपनी तरफ से बड़ी तैयारी करके गए थे। हमें बहुत कुछ आता है, सब कुछ सारी चीजें हैं। 8 मिनट की प्रेजेंटेशन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सब बैठिए। हम सीएम साहब के साथ गए थे, उन्होंने बिठाया, उन्होंने कहा तो आप क्या करते हैं? हमने कहा सर हर साल हम पंजाबी प्रवासी दिवस करते हैं।
1993 से कर रहे हैं और गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम जो जालंधर में वहां करते हैं या चंडीगढ़ में करते हैं, हर साल होता है। उनको बहुत अच्छा, वेरी गुड। पंजाबी प्रवासी दिवस तो वाकई सब थोड़ा गैप दिया करते थे, सोचते थे, फिर जवाब देते थे। कब करते हैं आप? हमें कहा 13 जनवरी को। बोला 13 जनवरी को क्यों करते हैं? हमने कहा लोहड़ी फेस्टिवल होता है, बड़ा फेमस है पंजाब इंडिया में, इसलिए हम 13 को करते हैं। उन्होंने कहा पंजाबी प्रवासी दिवस करते रहिए, हम प्रवासी भारतीय दिवस शुरू करते हैं। ये वाजपेयी जी की देन है। एनआरआई को इकट्ठे जोड़ना, एनआरआई को इकट्ठे लेके आना। और फिर उन्होंने पूछा आपने क्या बताया था, आप कब करते हैं? हमने कहा सर 13 जनवरी को। थोड़े गैप के बाद बोले हम प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को करेंगे। सेक्रेटरी कल्चर, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर, सेक्रेटरी एजुकेशन, उस समय एचआरडी होता था, सब इकट्ठे बैठे और बातचीत हुई। सब सोच रहे थे कि 9 जनवरी क्या है। यकीन मानिए मुझे नहीं पता था कि 9 जनवरी क्या है और क्या होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय उन्होंने कहा कि 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे, उनसे बड़ा एनआरआई कौन होगा। So the background why 9th of January is being celebrated as Pravasi Bharatiya Divas, this is the cause, this is the reason and this is the background. और उसके बाद से आप देखिए आज हर स्टेट अपना मनाती है, प्रवासी भारतीय दिवस भी होता है, सब चीजों का। तो यहाँ से पंजाब से बहुत सारे लोग बाहर गए हुए हैं और यहाँ से अगर कोई स्पेशल फ्लाइट चल जाए तो लोग कहेंगे रातों रात कनाडा कैसे, वीजा भी ना लगे, वीजा के बगैर ले लो हमें तो, पर हमें ले लो, ऐसा लोगों की फीलिंग आएगी। नाउ व्हेन वी लुक एट इट, एक और चीज है, विकास तो हुआ है, डेवलपमेंट तो हुई है, प्रॉस्पेरिटी तो हुई है, ग्रोथ तो हुई है, जीडीपी तो बढ़ा है, इनकम तो बढ़ी है, लेकिन साथ में बीमारियां भी बढ़ गई है। अमृतसर के अंदर हॉस्पिटल देखिए, जालंधर तो पूरा बाजार ही हॉस्पिटल्स का है। कुछ कुछ गलियां ऐसी हैं कि आपको सिर्फ हॉस्पिटल्स मिलेंगे वहां पर। लुधियाना अगेन हॉस्पिटल्स, मोहाली अगेन हॉस्पिटल्स। तो एक और स्कोप है दैट इज कॉल्ड मेडिकल टूरिज्म। जो बच्चे फार्मा कर रहे हैं, एनवायरमेंट कर रहे हैं, मेडिकल का कुछ कर रहे हैं, you can be associated with medical tourism also. You can think about it. That is another area which can be done very well for our country. और हमारी रिकमेंडेशंस में से हम थोड़ी सी चीजों को माननीय अपने वाइस चांसलर साहब के साथ शेयर करेंगे कि अगले साल का जो पंजाबी प्रवासी दिवस हो उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब शुड प्ले इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ के स्टूडेंट ही उस इवेंट को मैनेज करें, पार्टिसिपेट करें, हमारे टीचर्स, हमारे लेक्चरर्स, हमारे प्रोफेसर्स उसके साथ एसोसिएटेड हो। आप यकीन मानिए, आप दिन रात एक कर लीजिए, पैसा खर्च कर लीजिए, लिंक्डइन पर चले जाइए, लोगों को ढूंढते रहिए, उतने एनआरआईज को आप नहीं मिल पाएंगे जितने आपको उस 13 और 14 जनवरी को मिल सकते हैं। और उनमें से बहुत सारे एनआरआई हैं जो भारत के लिए और खासकर पंजाब के लिए कुछ करना चाहते हैं। Why not we should link those NRIs with Central University Punjab? So पहला निवेदन मेरा रहेगा माननीय वाइस चांसलर साहब को कि नेक्स्ट ईयर की जो पंजाबी प्रवासी दिवस हो उसके अंदर हम अपनी यूनिवर्सिटी को जरूर एसोसिएट करें। It would play very important role. कुछ बच्चों को अच्छा रोजगार भी मिल जाएगा, कुछ को स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, कुछ को बाहर जाने का मौका भी मिल जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा अपना पासपोर्ट बनवा के रखिए, कोई पता नहीं कौन सा एयरक्राफ्ट कब आपके लिए आप बठिंडा को मुड़ जाए, कोई पता नहीं है। During my entire journey with the Ministry of Tourism, Government of India, I traveled 140 countries free of cost. Free of cost. भारत का एक पैसा नहीं खर्च किया, ट्रू पंजाबी हूं, एक पैसा नहीं खर्च किया भारत का। जो बुला रहा है उसको बोला भाई तुम बुला रहे हो, तुम्हें मेरी जरूरत है, टिकट भी भेजो, बोर्डिंग लॉजिंग भी भेजो, थोड़ी सी पॉकेट मनी भी भेजो। चाहे एक हफ्ते की स्कॉलरशिप हो, चाहे एक महीने की हो, चाहे 3 महीने की हो,
if you get any opportunity, और एम्बेसीज और हाई कमीशन के साथ जुड़ जाइए। आपको कोई पता नहीं है कब का कहां कैसे आपको ओपनिंग मिल जाए। एम्बेसीज और हाई कमीशंस इनके कल्चरल सेंटर्स हैं, वो भी आपको मौका देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बाहर जाके रहो, पर किसी को जान तो लो कि वो लोग कौन है, और फिर आपको प्राउड महसूस होगा। किसी भी आदमी को जो बाहर विदेश घूमने जाता है, जब वो भारत वापस आ रहा होता है, वो एयर इंडिया का जहाज ढूंढता है, एयर इंडिया की एयर होस्टेस को साड़ी के अंदर ढूंढता है, अपना छोले भटूरे ढूंढता है, कुलचे छोले ढूंढता है, अपना भरता ढूंढता है, अपनी भिंडी ढूंढता है, अपनी चपाती ढूंढता है। He is not interested or she is not interested to have one food। और जब आप एयर इंडिया की फ्लाइट में बैठते हो, चौकड़ी मार के अपनी सीट पे वो होते खाना खवाएगी। That is the way you have to feel and you have to look at it. Your own country, India is the most beautiful country on this planet. Say yes. Yes. India is the most beautiful country on this planet. We are the best. We are the best. हाथ मिलाओ पड़ोसी से, आज तो आपको बेस्ट होना ही है। मिलाइए मिलाइए हाथ पड़ोसी से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मुझे पता नहीं है कि हमारी यूनिवर्सिटी का, क्योंकि मैंने अभी वेबसाइट भी नहीं देखी है, मैं क्षमा याची हूँ, लेकिन नहीं अगर हमारे पास कोई पीजी प्रोग्राम 1 साल का, और नहीं तो भारत की पहली एमबीए एनआरआई स्टडीज की इस यूनिवर्सिटी से शुरू हो सकती है, क्योंकि 32 मिलियन इंडियंस बाहर गए हैं। मैं आपको ये नहीं कहूंगा उसमें से पंजाबी कितने गए हैं, वो नहीं बताऊंगा आपको। 32 मिलियन इंडियंस में से पंजाबी कितने बाहर गए नहीं बताऊंगा। You may run a short-term course, you may run a long-term course. Ministry of External Affairs will be very, very happy. हमने Ministry of External Affairs के साथ एक प्रोग्राम किया, that's called pre-departure training. अगर बाहर जाना है, dignified way में जाओ, systematic way में जाओ, professional way में जाओ, ना के पहले नदी में कूदो, फिर नाव में बैठो, फिर जंगल में जाओ, फिर सांपों के तबेले में जाओ, पीछे से छुप के फिर रेफ्यूजी की तरह जाओ, उसकी जरूरत नहीं है। That is not required. आज भारत की पहचान है, आज भारत की पहचान है। एक ऐसा वक्त था जब मैं 1983-84 में जाता था और बस में बैठता था लॉस एंजलिस में या शिकागो में या यूनिवर्सिटी ऑफ पर्ड्यू में कहीं मिलने जाता था, मेरी साथ वाली सीट में कोई गोरा बैठने को तैयार नहीं होता था। ऐसा वक्त था, उससे पहले भी बहुत सारे लोग गए, लेकिन आज वो पहले पूछते हैं, एक्सक्यूज मी, यस, आर यू फ्रॉम इंडिया, यस, आपकी साथ वाली सीट पे बैठ के, ओ यू मस्ट टेल मी समथिंग अबाउट योर सॉफ्टवेयर, यू मस्ट टेल मी समथिंग अबाउट योर आईटी, यू मस्ट टेल मी समथिंग अबाउट योर कंप्यूटर्स। टाइम बदल गया है, और सबसे बड़ा बदलाव, क्योंकि मैं तो बाहर बहुत ट्रैवल करता हूं, एनआरआई के साथ डील करता हूं, your respect has gone many fold up. The whole world is looking towards India. ये कैसी सभ्यता है, ये कैसी संस्कृति है, ये कैसा कल्चर है, ये कैसे लोग हैं, ये किस मट्टी के बने हैं, को देख दीजिए, बस लगा दीजिए, टाइम आ गया है, छोड़ दीजिए। तो मैं निवेदन करूंगा, हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम एनआरआईज का जरूर होना चाहिए, चाहे अंडर ग्रेजुएट हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो, चाहे डिप्लोमा हो, किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में, लेकिन जरूर होना चाहिए। दूसरा, आपकी जो पढ़ाई लिखाई है, चाहे आप मास्टर्स किसी भी सब्जेक्ट में कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, आपका ठीक है, करते रहिए आप। हमने एआईसीटी को, प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी को, उनके टाइम में व्हेन ही वाज द चेयरमैन ऑफ द एआईसीटी, एक कॉन्सेप्ट दिया था राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंदर, रूसा के अंदर, फिनिशिंग स्कूल होना चाहिए। अब जैसे वो नाम अच्छा था, हॉलीडे एंड लेजर टूरिज्म, ऐसे फिनिशिंग स्कूल। अब anybody can give the history of a finishing school, anybody can give you the concept of a finishing school। कोई सोच सकता है कि फिनिशिंग स्कूल क्या है? एआईसीटी की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे, 9000 के करीब कॉलेजेस जो एआईसीटी के साथ जुड़े हुए हैं, on the home page website of AICTE,
there is a button on the top, drop down, you see the menu under education, you'll find finishing school. Finishing school is polishing, telling you your identity, your talent, your passion, your hobbies, your inclination, your dedication, your devotion, and what do you want to become in life. That means your personal and professional growth. उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, अब डेवलपमेंट लोग नहीं चाहते, उनको अच्छा नहीं लगता। पंजाबी बाग, रजौरी गार्डन, दिल्ली में पश्चिमपुरी जाओ, किसको बोलो ना आपके बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप, ना हमारे बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप है पहले से, कोई जरूरत नहीं। पर आपको ये कहो ना पर्सनालिटी एनहांसमेंट, हाँ ये करा देंगे बच्चे को, ये बड़ा जरूरी है पर्सनालिटी एनहांसमेंट। सो हम अपनी चेंबर की तरफ से वाइस चांसलर साहब को ऑफर करते हैं कि कोई 2 कमरे किसी भी कोने में यूनिवर्सिटी में हो, और हम आपको 6 महीने में बता देंगे सबसे ज्यादा भीड़ वही हुआ करेगी और कहीं नहीं होगी। हम उसको बच्चों की पर्सनैलिटी, उनकी कॉम्बिनेशन के लिए तैयार करना, उनको एमएसएमई के लिए तैयार करना, उनको डीपीआईआईटी के लिए तैयार करना, उनको स्टार्टअप के लिए तैयार करना। We will work out in 2 rooms. It will be called Digital Inspirational Lab. हमने वर्ड यूज किया इंस्पिरेशन। मोटिवेशन कुछ वक्त के बाद खत्म हो जाता है, इंस्पिरेशन रहती है। उससे इंस्पायर किया था, उससे ये बताया था, उस चीज को लेके चलो। इंस्पिरेशन स्टेज फॉर द लॉन्गर टाइम। ओके, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं चेंबर के, ही इज अ वाटरमैन ऑफ सिंगापुर। क्या यार, छोटी सी कंट्री, छोटा सा देश जिसको लात मारी गई थी और मलेशिया ने कहा था इस टापू को अलग कर, या तंग कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को ड्रेन आउट कर रहे हैं, इनको बाहर निकालिए। और सिंगापुर को उस तरीके से अलग एक टापू को फेंका गया था। आज की डेट में अगर आप बातचीत करें फाइनेंशियल हब की, टूरिज्म की, किसी भी क्षेत्र की बातचीत कर लीजिए आप, 24 घंटे के अंदर वहां से, उस टापू से, बंदरगाह से कार्गो उतर के वो चला जाता है। वहां की ग्रीन मैनेजमेंट, वहां का इको मैनेजमेंट, वहां का वाटर मैनेजमेंट, वहां का पोल्यूशन मैनेजमेंट, वहां की एनवायरनमेंट, कोई भी चीज ले लीजिए। सिंगापुर की एजुकेशन, लिंगोन यूनिवर्सिटी के अंदर जहां मैं जाता हूं पढ़ाने के लिए कई बार, और मैं महसूस करता हूं, I just try and feel what exactly is this country, यार क्या है, what is happening? Singapore airline for 10 continuous years is the first and the top airline of the world. Can you believe it? और एक नई चीज आ रही है, एक चूहा होता है उसको माउस बोलते हैं, उनकी मां, उनकी वाइफ होती है या कुछ उनकी रिश्तेदारी में माइस बोलते हैं उनको, MICE। टूरिज्म में माइस का नाम अलग है, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशन, उसको बोलते हैं माइस इंडस्ट्री। इसमें बड़े रोजगार आ रहे हैं। सिंगापुर हैज गॉट द बिगेस्ट एंड एशिया's largest convention facility in the Sunteck Center. Can you believe it? आप 5000 लोगों की कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, आप 5 लाख लोगों की कॉन्फ्रेंस कर लीजिए। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में हमारे एक और दोस्त आया करते थे। पंजाबियों को 3-4 शौक बहुत ज्यादा है, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा घूमो, बचाना कुछ नहीं है। Whatever you have got it here, you have to be। और दूसरा थोड़ी सी शो ऑफ भी होती है हमारी। मैं खुद पंजाबी हूं इससे बोल रहा हूं, जेब में 100 रुपया होगा लेकिन अगले को फीलिंग देगा मेरे को 1000 रुपये है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट इज हमारी फितरत है। क्या किया जाए, हम नहीं कुछ कर सकते इसके बारे में। वो जीन्स अगली बार आएंगे तो देखेंगे बदल जाए, तो अब तो नहीं बदल सकते। यश चोपड़ा जी हमारे बड़े अच्छे दोस्त बन गए। यश चोपड़ा जी आया करते थे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और कहने लगे कि मेजर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू शूटिंग इन इंडिया, बिकॉज शूटिंग शुरू करते हैं, पहले पुलिस वाले आ जाते हैं, फिर उनकी फैमिलीज आ जाती है, फिर उनके रिश्तेदार आ जाते हैं, फिर बाकी लोग आ जाते हैं। वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू डू जस्टिस। 5 मिनट और बस। वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू डू जस्टिस विद द फिल्म शूटिंग, तो कुछ करवाओ। उसी दिन हमारे यहाँ पर सिंगापुर टूरिज्म के, इसके स्विट्जरलैंड टूरिज्म के लोग आए हुए थे, स्विट्जरलैंड के लोग। स्विट्जरलैंड वालों ने कहा यश चोपड़ा जी को हमारी को भेज दो ना। दिल तो पागल है,
दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, लम्हे, चांदनी, मोहब्बतें, इन सब फिल्मों की शूटिंग सारी स्विट्जरलैंड में हुई और यश चोपड़ा को 5 स्टार फैसिलिटी, ट्रीटमेंट, हेल्प, हैप्पीनेस, ग्रोथ, वेलनेस सारा कुछ मिला स्विट्जरलैंड में। पैसे भी मिले, लोकेशन भी मिली, सारी फैसिलिटीज मिली। आज यश चोपड़ा जी के नाम पर स्विट्जरलैंड में रेलवे स्टेशन है, उनके नाम पे वाटरफॉल है। जैसे मैडम टुसैड्स म्यूजियम के अंदर लंदन में फोटोग्राफ सबके वैक्स मॉडल्स बनाए जाते हैं, यश चोपड़ा जी का वैक्स मॉडल वैसे ही स्विट्जरलैंड के म्यूजियम में है। फिल्म हैज गॉट दैट पावर। तो पंजाबियों को फिल्म का भी बहुत शौक है। एंड व्हेन यू आर हियर इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मेरे छोटे ब्रदर का बेटा, मैं ना तो जी मैंने पढ़ना नहीं है, मैंने पढ़ना नहीं तो क्या करें, तो जी आपने तो देखो मैं पढ़ाई में आपने कहा था कि मैं आर्मी ज्वाइन कर लेता हूँ, मैंने नहीं पढ़ा, मैं बोला फिर क्या करेगा, वो टाइम और था, आज का टाइम और है, हमारे टाइम उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। ही सेज नहीं, मैं बताऊँ जी मैं पढ़ाई ऐसे नहीं करता। मैं कहा क्या करना है, कहता मुझे फिल्मों में जाना। मैंने कहा ओके। We designed for UGC a program called Bachelors in Media, Entertainment and Film Technology Management. I was going to Whistling Woods that time as a visiting professor because मेरा बहुत शौक था प्रैक्टिकल काम करने का। कृषि की 29 दिन शूटिंग हमने सिंगापुर में करवाई। 8 करोड़ रुपया राकेश रोशन जी को दिलवाया, किससे? सिंगापुर टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड से। And that movie Krish 1 was shot in Singapore. कहो ना प्यार है, we took it to New Zealand. There are so many stories. तो ये कहने लगा मेरा नेफ्यू कि मुझे नहीं पढ़ना था जी। मैंने कहा क्या करोगे, मेरे को आपकी बैचलर डिग्री करा दो। टुडे मैं सिर्फ आपको ये नहीं डिस्करेज कर रहा हूं कि मास्टर्स करना, पीएचडी करना ये गलत है, नहीं करना चाहिए, ये सब करो अगर मन करता, प्रोफेसर बनना जरूर करो, यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने जरूर करो, पर इसलिए नहीं करना है कि बाकी ने मास्टर्स किया इसलिए मुझे मास्टर्स करना है। नो, choose the subject of your own choice. That boy has purchased his own beautiful Pentium house in Bombay. He has got 3 Mercedes today. He walks so well. He did Fukre Part 1, Fukre Part 2, Fukre Part 3, Chupta. That is Varun Sharma. Right? He's my younger brother son. And उसको शाहरुख खान ने उठा लिया। शाहरुख खान ने दिलवाले कराई उसके साथ। फिर उसके बाद किस को प्यार करूं? कपिल शर्मा ले गया उसको। What I am telling you is, मैं सिर्फ आज आपको मॉर्निंग में ये कहना चाहता हूँ, क्लाइमेट चेंज के अंदर ये चेंज कीजिए, what you are passionate about, what do you want to do, what do you want to become, and whatever you want to become, you will excel at that. हमारे जो प्रेसिडेंट हैं चेंबर फॉर सर्विस इंडस्ट्री के, he is based out of Singapore, he is a waterman of Singapore. तो मैं उनको भी मित्तल साहब के और वाइस चांसलर साहब के साथ जोड़ूंगा इस यूनिवर्सिटी में, ताकि हमें वहां से कुछ मिल सके। आई डू नॉट नो फार्मा, तो मैंने देखा कहीं यूनिवर्सिटी के अंदर फार्मा का प्रोग्राम है, लेकिन हेल्थ और वेलनेस का अगर कोई प्रोग्राम है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज लेट अस स्टार्ट ए प्रोग्राम ऑन वेलनेस पार्ट, मेडिकल पार्ट, मेडिकल टूरिज्म पार्ट, कोई ना कोई चीज हमें सोचनी पड़ेगी जिसके लिए, क्योंकि यू विल बी सरप्राइज। कोई बच्चा मुझे अगर पूरे ऑडियंस में से कोई स्टूडेंट ये बता सके कि जो आपकी ओवरसीज मेडिकल इंश्योरेंस होती है उसके अंदर एक चीज कवर नहीं होती, वो क्या चीज है? जो हमारे एनआरआई या पीआईओस बाहर रह रहे हैं उनका मेडिकल कवरेज होता है कि वो अपनी ट्रीटमेंट करा सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज है जो कवर नहीं होती। व्हाट इज दैट? कैन समबडी टेल मी? गर्ग साहब को 1000 नहीं मिलेगा बिकॉज ये प्रोफेसर है। बिग क्लैप फॉर प्रोफेसर गर्ग। इट इज डेंटल पार्ट, डेंटल, दांतों की इंश्योरेंस मेडिकल में नहीं होती है, और वो डेंटल ट्रीटमेंट के लिए आप सोच लीजिए, मेरे बहुत सारे मित्र हैं वो फ्लाइट पकड़ के इंडिया आते हैं, यहाँ आके मोहाली में ट्रीटमेंट कराते हैं, पूरा रिश्तेदारी को मिलके जाते हैं, यहाँ का जो मीठा खाना है वो खा के फिर वापस जाते हैं, फिर भी 50% पैसा बचाते हैं, बिकॉज डेंटल ट्रीटमेंट इज वेरी कॉस्टली इन अमेरिका, यूके एंड कैनेडा। यू गॉट टू सी किस जगह पर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या बिकता है, क्या चीज कर सकते हैं। और एक और
रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपका एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है, अरुणाचल प्रदेश लेके चलता हूं आज आपको। मैंने 80 बच्चे अरुणाचल प्रदेश में तैयार किए हैं जिन्होंने प्रोग्राम किया था बैचलर्स इन रूरल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। रूरल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, वो 80 के 80 बच्चे आज सरकार के साथ, अरुणाचल गवर्नमेंट के साथ रोजगार लेकर चले गए, क्योंकि देयर वर नो स्पेशलिस्ट इन रूरल। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, भारत आज भी रूरल है, भारत आज भी एग्री है। आप कोई एक प्रोग्राम शुरू कीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, फार्म टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म, इको टूरिज्म, नेचर टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, फ्लोरा एंड फौना टूरिज्म, कोई भी बठिंडा टूरिज्म, अरे एनीथिंग यू थिंक ऑफ, कोई ऐसी चीज शुरू कीजिए जिससे यहाँ का वातावरण और सब चीज जुड़ी हुई हो। वो बच्चे कल को रूरल डेवलपमेंट में, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, एंड मे बी certain people those are doing their dissertation or PhD or something, you can have a subject related to rural economy, rural development, rural management, economic multipliers के ऊपर भी काम कर सकते हैं। You can plan on to these things and that can be done wonderful। इसी के साथ साथ final point which comes to my mind is, पंजाब में हर साल ये लोग सोचते हैं एक इन्वेस्टर्स मीट कराई जाए। अभी हिमाचल में भी कराई थी, अभी यूपी के अंदर भी हुई थी, तमिलनाडु में भी हुई थी, राजस्थान में भी हुई थी, बहुत सारे मध्य प्रदेश में भी हुई थी। आप जब नेक्स्ट इन्वेस्टर मीट कराना है, अब इन्वेस्टर मीट का मतलब क्या है? हम ढूंढ रहे हैं कि हमारे बच्चों को कॉर्पोरेट मिल जाए, हमारे बच्चों को अच्छा पैकेज मिल जाए, हमारे बच्चों को अच्छी सैलरी मिल जाए, हमारे बच्चों को ओपनिंग मिल जाए। अभी थोड़े दिन पहले ही मैं कुछ अधिकारियों के साथ बैठा था, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अदानी ग्रुप, he was also there, and I was just sharing with him and he was telling me lot of opportunities are there, lot of opportunities are there rural areas में। Let us do one program जो आपका डिपार्टमेंट एनवायरमेंट का है उसी के अंदर जोड़कर हर आदमी आज क्या बातचीत कर रहा है, क्लाइमेट में एडेप्टेशन करना है, मिटिगेशन करना है, क्या चीज करना है, क्लाइमेट चेंज की बातचीत कर रहे हैं, बर्फ पिघल रही है, पानी का लेवल ऊपर जा रहा है, बहुत सारे if you go to Malé, if anybody has gone to Maldives, if you see now the jetty has been made, मेरे टाइम के अंदर हम एयरपोर्ट उतरते थे माले के, अब कोई नाव में बिठाया जाता था, फिर हम उनके मेनलैंड पे जाते थे, और यकीन मानिए पूरा मालदीव्स आप 2 घंटे में पैदल घूम के आ सकते हैं। 2 घंटे में पूरा मालदीव्स। इट इज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स विजन कि इतनी देर से लक्षद्वीप का कुछ हुआ ही नहीं था, बंगाल आइलैंड, अगती आइलैंड, वेली आइलैंड, ये सब चीजों की जब हम बातचीत करते हैं, ओके, एनीबॉडी कैन टेल मी हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर इन लक्षद्वीप? एनीबॉडी हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर इन लक्षद्वीप? नहीं, हाँ 32, okay, anybody else? 37, कौन बोले? Okay, he's a wonderful Indian, एक extra, 36 I can say, he's a wonderful Indian, clap for him। Yeah, एक खराब Indian 32 बोला है। There are 36 islands, and ladies and gentlemen, if you fly from Kochi or if you fly from Trivandrum and if you're going to Maldives, on the way, when you see this beautiful coral reefs, when you see these lagoons, when you see this crystal clear marine life, you would say, oh my God, I didn't know India is so beautiful. India is amazing. Anybody from Kerala? Anybody from Kerala? Yennomentare novela, Yushabalasar Kochu novela, Premi like Kochu Kama Mahagrama Manundake. Okay. 1989, I traveled the entire Kerala and I did the plan for them how to promote tourism in what areas. Right from Ponpuri hill station to Tiruvantanapuram to Varkala to LP to Koilam to Waipin to Trichur to Molopada Dam to Kottayam, Thekari to Idiki to Periyar to Sharma Valley. That is the Kerala we enjoy. अरे किताब पढ़ के थोड़ी पढ़ाई होती है, खाली किताब से कुछ नहीं होता। लाइफ इज प्रैक्टिकल, जिंदगी जिए तो उसी से सब कुछ चलता है।
इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं नतमस्तक हूं आज ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब को। 32 साल अपने जीवन के इन्होंने मिजोरम को दिए और इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में जब समय लगाया होगा उस समय वहां की व्यवस्थाएं क्या रही होगी। More than 100 papers and more than so many PhDs he supervised and so many other areas he took care of. Ladies and gentlemen, अगर इस वाइस चांसलर साहब का आप फायदा नहीं लेंगे तो पंजाब कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। We should be the best thank you for this right. इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबसे पहले सभी बच्चों का बहुत बहुत आभारी हूं, क्योंकि आजकल क्या होता है, मैं खुद रील्स देखता हूं, फ्लिप 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 काम का है कि नहीं, देखना है कि नहीं। आपने मुझे इतना झेला, आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। सभी टीचर साहबान का बहुत बहुत आभार। मित्तल जी का, इन्होंने मुझे विशेष रूप से बुलवाया। गर्ग साहब को 1000 नहीं देने हैं। और ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब का मैं नतमस्तक होकर आभार प्रकट करता हूं कि आप इतनी देर बैठे, आप इतना समय दिया, आपको थैंक यू सर। भारतवर्ष के गांव में एक व्यापारी था और एक बहुत स्मार्ट व्यक्ति था। उस गांव में एक मंदिर था। जो व्यापारी था वो डेली जाकर के उस मंदिर में पूजा करता था। जो स्मार्ट पर्सन था वो बोला कि तुम पूजा करते हो और मैं मंदिर में जाके शाम को 4 लात मारूंगा, पैर से मंदिर को मारूंगा और देखता हूं कि भगवान पहले किसको दर्शन देते हैं, जो पूजा करता है या कि जो पैर मारता है। गांव मंदिर के बीच में नदी थी। ये प्रक्रिया कई वर्ष तक लंबे तक चली। एक समय ऐसा है कि बरसात भी लगातार 4-5 दिन तक और नदी में बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई। दोनों साथ में मंदिर की तरफ चले। तो व्यापारी थे वो अपना पूजा सामग्री सब निकाल कर देखे, नदी उफान में है तो वो अपना पूजा सामग्री सभी निकाल के और नदी के किनारे दूर बैठ करके वहीं से भगवान की पूजा करने लगे। हम लोग मानते हैं ना कि हम जहाँ पूजा करें वही भगवान, वो करने लगे। लेकिन जो पैर मारने वाले व्यक्ति थे वो बोले नहीं, मैं तो मंदिर जाके ही मंदिर में पैर मारूंगा, यहाँ से पैर नहीं मारूंगा। तो व्यापारी भाई क्यों बोलते हैं मत जाओ, बहुत नदी में बाढ़ है, तुम बह जाओगे, मर जाओगे। लेकिन वो माना नहीं और वो उपनाती नदी में कूद गए। जब वो डूबने वाले थे तो भगवान वहां प्रकट हुए और उसे बचा लिया। तो व्यापारी भाई तो पूछते हैं कि मैं तो आपकी हमेशा इतनी पूजा करता था, लेकिन आप मुझ पर पसंद नहीं हुए, मुझे दर्शन नहीं दिए। जो आपके मंदिर में पैर मारता था उसको आप दर्शन दे दिए। भगवान बोलते हैं देखो, एक तो इसने आउट ऑफ बॉक्स सोचा। कोई ऐसा नहीं सोचता कि हम मंदिर में पैर मारें, तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होगी। और दूसरा इसका डिटर्मिनेशन, करेज और कॉन्फिडेंस देखिए कि तुम तो डर के उपनाती नदी के किनारे से ही मेरी पूजा करने लगे और इसको मंदिर में पैर मारने की इतनी ज्यादा लगन थी कि अपने जीवन की परवाह नहीं करते हुए ये उपनाती नदी में कूद गया। इसके आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, इसका करेज, कमिटमेंट और कॉन्फिडेंस, इन 3 लेवल से मैं बहुत ज्यादा, इसके 3 गुणों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और इसलिए मैं इसको दर्शन दिया। तो आज का हमारे बड़े भाई, ये 70 वर्ष के हैं, मैं 67 वर्ष का हूँ, इनके उद्बोधन का जो आपने समावादी और शुरुआत में आपने कहा
कि आज के युवाओं का मेमोरी स्पान बहुत ही कम है और रिटेंशन भी बहुत कम है। दोनों बातें, केवल स्पान मेमोरी स्पान ही कम नहीं है, मेमोरी रिटेंशन भी, कंसंट्रेशन लेवल जो पहले हुआ करता जो आपका था आज के युवाओं का नहीं है, और चीजें रिटेन भी नहीं होती है यदि हम उनको ट्रेडिशनल वे में उसको उस विषय को रखें, तो दोनों चीजों का लॉस होता है। मेमोरी स्पॉन भी, अटेंशन जिसको बोलते हैं वो भी नहीं रह पाता, और रिटेंशन, अटेंशन एंड रिटेंशन दोनों नहीं हो पाता। तो आपने जिस वातावरण में जिस तरह का आपने क्लाइमेट क्रिएट कर और उसको एडाप्ट करने को हमारे बच्चों को प्रेरित किया, वो सही में बहुत ही सराहनीय और बहुत ही प्रेरणादायक था। हम सभी आपके आभारी हैं। आपकी मेमोरी देखिए, आप सागर गए थे 80s में और मिजोरम गए थे 2003 या 4 में, लेकिन अभी भी जिन लोगों से मिले, जहां जहां गए, उन सभी जगहों का नाम आपने लिया। आपने अरुणाचल प्रदेश की इतनी लोकेशन बताई, आपने असम की इतनी लोकेशन बताई, आपने केरल की इतनी लोकेशन बताई। तो देखिए कितनी ज्यादा मेमोरी इनकी है, कितनी याददाश्त। और मुझे नहीं लगता है कि ये पहले रिवीजन करके आए होंगे कि हम इन जगहों का नाम मैं वहां बताऊंगा, ये इंस्टेंटली आया। तो एक ये भी हम सब लोगों को सीखने की आवश्यकता है। हम तो अपना फोन नंबर ही नहीं याद कर पाते हैं, और आपको देखें कि कितना ज्यादा जगहों का नाम, कितने ज्यादा लोगों का नाम आपको है। तो ये आज हम सबके लिए एक ये भी है कि हमें अपनी याददाश्त चुस्त दुरुस्त रखनी है। देखिए आज का जो सीखने का इकोसिस्टम है, दैट हैज अंडरगॉन सी चेंज। इसमें हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, दैट एम्फसाइजेस ऑन हाउ टू लर्न, नॉट ऑन व्हाट टू लर्न, नॉट ऑन द क्वांटम ऑफ लर्निंग बट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये तभी आएगा जब हम आउट ऑफ बॉक्स सोचेंगे। क्लासरूम में केवल बैठे रहेंगे, शिक्षकों को सुनते रहेंगे, इंफॉर्मेशन रिसीव करते रहेंगे, और दैट इंफॉर्मेशन रिमेन्स लॉटेड इन अवर ब्रेन, उससे कुछ काम नहीं चलने वाला। जो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसको कैसे एनालाइज करना है, सिंथेसाइज करना है, उससे कैसे कंक्लूजन्स निकालना है, और जो इसके बाद जो आप सीखते हैं उसकी उपादेयता क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, व्हाट इज एप्लीकेशन पोटेंशियल ऑफ दैट लर्निंग इन आवर इंडिविजुअल लाइफ, इन आवर सोशल लाइफ एंड इन आवर पर्सनल लाइफ। जब तक हम इस फॉर्मेट ऑफ लर्निंग में नहीं जाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट हमेशा हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनेगी। और जब हम आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग में जाएंगे, सर्विस सेक्टर का भी बहुत ज्यादा स्कोप है। आप सबको मालूम है कि भारतवर्ष अभी जीडीपी, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी वी आर फिफ्थ इन द वर्ल्ड, लेकिन इन जो 4-5 सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर है, प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर है, सर्विस सेक्टर है, इसका कितना योगदान है, किस किस कहाँ से हमारी जीडीपी आती है, और किस डायरेक्शन में, कहाँ से, और नए एरियाज जो हमारी जीडीपी को स्ट्रेंथन करें। और इसके साथ साथ जो क्लाइमेट रिजिलिएंट मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज है, इनोवेशंस, जिनके द्वारा हम जो एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में जो समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढने के लिए तब वी हैव सेट अप निधि ITBI, जहाँ पर हम बिजनेस आइडियाज बच्चों का इनवाइट करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे विश्वविद्यालय के बच्चे इसमें ज़्यादा भाग नहीं लेते, पूरा एडवर्टीजमेंट होता है। तो आप सब सोचें, तो देखिए सोच इनोवेशन में 2 चीजें होती हैं, एक जो ऑलरेडी चीज अवेलेबल है उसको और कैसे हम उसकी एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव करें, उसको कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैसे बनाएं, उसको क्लाइमेट रेजिलिएंट कैसे बनाएं। जो ऑलरेडी चीजें उपलब्ध हैं, टूल्स, टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, उसको कैसे और इम्प्रोवाइज करें इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंस। और फिर जो जहां पर जिसके सॉल्यूशंस नहीं उपलब्ध हैं उनके सॉल्यूशंस ढूंढें। तो इन 2 एरियाज में काम करने की बहुत आवश्यकता है। और अभी मैं अक्सर बोलता हूं कि आप सब लोग बहुत लकी हैं। जब गुलशन साहब पढ़े थे उनको पुस्तकें नहीं उपलब्ध होती थी, और पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, तो हमें सभी चीजें अपने मस्तिष्क में रखनी
सभी चीजें याद करनी पड़ती, तो एक मस्तिष्क की भी एक कैपेसिटी होती है। अभी आप लोगों का माइंड इंफॉर्मेशन लोग आपको यहाँ पर स्टोर करके नहीं रखना है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है जहाँ आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, और या कि आप गूगल सर्च कर सकते हो किसी विषय की। तो आपके पास सोचने का ज्यादा समय, पहले हम लोगों को तो केवल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में ही हमारी बहुत सारी ऊर्जा एनर्जी चली जाती है। अभी आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का आवश्यकता नहीं है, तो आपके पास ज्यादा समय है सोचने के लिए, और पढ़ना इज ऑल अबाउट इफ यू कैन डेवलप द कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग, तभी वही पढ़ाई आपके साथ है। और इन सब के लिए इस तरह के लेक्चर जो आप गुलशन साहब ने बताया, समझाया चीजों को, बहुत सारी विषयों को उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसको हम बोलते हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर हमेशा बोलते हैं कि हमें लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाना है। स्टूडेंट्स क्लासरूम में आने के लिए अट्रैक्टेड हो, उनमें उत्सुकता हो, उत्साह हो कि हमें शिक्षक की क्लास अटेंड करना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग हमें जो लर्निंग हमारे स्पेसेस हैं, क्लासरूम, लैब्स, और इसके अलावा जो फील्ड एक्सकर्शन, फील्ड इमर्शन, डिजर्टेशन, इनको इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है कि आप एक भी क्लास यदि आप मिस करें तो आपको क्षोभ हो कि आपने आज ये क्लास मिस कर दिया, एक उसमें आनंद ना हो कि उसमें हमें बोरियत होती है, हम क्यों गए। तो क्लास मिस ना करें, इस तरीके का लर्निंग सिस्टम क्रिएट करने के लिए दोनों को, जिसको हम पार्टिसिपेटरी लर्निंग बोलते हैं, टीचर्स एंड टॉक्स, both have to work together, then only we can create a type of ecosystem where actual learning happens. तो उसकी आवश्यकता है। आपने बहुत सारे सुझाव दिए, हम उन सुझावों पर जरूर अमल करेंगे। कुछ चीजों को तुरंत शुरू कर सकते हैं, कुछ चीजों को शुरू करने के लिए हमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जुटाने पड़ेंगे, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारियां हमारी चल रही हैं, भवन निर्माण हो रहे हैं। तो इनमें से कुछ 2-3 चीजें तो जिनको हम तुरंत शुरू कर सकते हैं, उसको अवश्य शुरू करेंगे। और इसके साथ साथ हम आगे भी फ्यूचरिस्टिक, देखिए अभी हमारे देश के अभी जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है कि हमें 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, और वो हम तभी बन पाएंगे जब हम सभी उसमें योगदान दें। और उस योगदान आपको ऐसा अपने ऐसी कैपेसिटी डेवलप करना विश्वविद्यालय का ही कार्य है कि आप आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और बौद्धिक क्षमता के रूप से देश की प्रगति में आपका जो सहयोग है, आपका योगदान सुनिश्चित हो सके, यही हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट का मैंडेट होता है। इसके लिए हमारी तरफ से जो भी प्रयास हम लोग कर सकते हैं, कर रहे हैं, इसमें और ज्यादा गतिशीलता आनी है, इसको स्केलिंग अप करनी है, हम अवश्य करेंगे। और I most sincerely hope that the relationship that has begun today, although I knew him for last 2-3 years, and of course I met him in Idol also, but I really did not remember meeting him in Idol. When he told me, then only I remembered. And then about Raji in 2021, he invited me for the online talk. So that, and now we have met for the first time, and we have learned a lot from you, and I'm willing to forward this relationship forward in whatever form is possible. So I'd like to compliment Dr. Sudhir Mitra for roping him for today's deliberation. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Sir, I would like to inform the audience who have newly joined students that we last year participated in the National Water Awards by Ministry of Jal Shakti, and these are some of the photographs. And we are having 3rd prize in the National Water Awards 2021 by Honorable Minister of Jal Shakti and Honorable Vice Chancellor received the award. So again, after that, this year we applied for UNDP TERI IW Award by United Nations Development Program
Terry University and Ministry of Jal Shakti. And there also, there were only in university category 2 prizes. One was the first prize and other was the appreciation prize. And we have received the appreciation prize. And Honorable Vice Chancellor. Yes. So this year, Vice Chancellor to receive the award. So I am grateful and thankful to my Honorable Vice Chancellor for constantly encouraging us for this activity. And so the award received by me now, I want to hand over it to our Honorable Vice Chancellor on behalf of by our team. My team mainly who helped me in preparing all these documentation at ground level and applying this engineer Saurabh Gupta ji, please, engineer Puneet, then Dr. Jitendra Patnaik and Dr. Prafulli Sahu, please. Now I request our Honorable Vice Chancellor to please. Now I request Major Dr. Gulshan Sharma and also Engineer Sachidanand, Dr. Shruti Kanga, Dr. K.K. sir, to please join us. Dr. Nana MS. Nana ma'am, please join us. Thank you all. Now I invite you all for a cup of tea. All are requested to please join us for a cup of